हेलो गाइस। हम इस वीडियो में सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट का एक दूसरा नेम रीअरेंजमेंट एक्सप्लेन करेंगे और ये नेम रीअरेंजमेंट है क्लेजन रीअरेंजमेंट। क्लेजन रीअरेंजमेंट में एक्चुअली होता क्या है कि इसमें जो है जो शिफ्टिंग होती है ग्रुप की वो ऑक्सीजन से कार्बन के ऊपर होती है यानी स्पेशली ऑक्सीजन एटम से कार्बन एटम के ऊपर होता है। और इस रिएक्शन में होता क्या है कि एराइल एलाइल ईथर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक हमारा एराइल एलाइल ईथर है, इसे जब थर्मली हीट किया जाता है तो यह आर्थो एलाइल फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्लेजन रीअरेंजमेंट की जो सबसे खास बात होती है ये होती है कि दिस रीअरेंजमेंट इज टोटली बेस्ड ऑन सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, and in this rearrangement the shift of a group from oxygen to carbon takes place। या इस तरह से हम कर सकते हैं कि when aneryl allyl ethers are heated at 200 degree centigrade they arrange to ortho allyl phenol। आर्थो एलाइल फिनॉल में यानी जो ग्रुप होता है वो शिफ्ट हो जाता है बेंजीन न्यूक्लियस में। इस रीअरेंजमेंट की सबसे खास बात और एक होती है कि जो ग्रुप माइग्रेट करता है स्पेशली वो ऑर्थो पोजीशन पर सबसे पहले माइग्रेट करता है। सपोज दैट इफ आर्थो पोजीशन इज ब्लॉक देन इट माइग्रेट्स टू द पैरा पोजीशन। जब ये आर्थो पोजीशन इसका ब्लॉक होता है तभी ये पैरा पोजीशन पर माइग्रेट होता है, अदरवाइज ये पैरा पोजीशन पर माइग्रेट नहीं होता, सबसे पहले आर्थो पोजीशन पर होता है। सपोज दैट इफ बोथ द पोजीशंस आर ब्लॉक्ड, आइदर दिस इज आर्थो पोजीशन और दिस इज पैरा पोजीशन, then the rearrangement does not takes place because this group is not migrate at the meta position। यानी हमें मेटा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसका मतलब हुआ the group migrates to the ortho position specially, although some para product has also been obtained in some cases, generally in those cases where the ortho position is blocked, then we can very easily obtain the para product। Here some examples are shown below। In this case here you see that both the ortho position are blocked by alkyl group। In this way when this molecule is heated then what happened, the product initially involved the substituted group at the para position। Here you see that how it is possible। When we explain the mechanism of this reaction then there we see that we will see that कि how the allyl group is migrated to para position। First of all it migrates at the ortho position, after that this further migrate to the para position and so on। But during the ortho migration the allyl group undergoes allylic shift, there is allylic shift takes place। That means the carbon atom alpha to the oxygen, what do you mean by alpha to the oxygen? This is the oxygen atom and this is the alpha carbon, this is alpha carbon। We consider the carbon atom at alpha
to the oxygen atom in the substrate becomes gamma to the ring in the product. This become to the gamma. Suppose that if we named by alpha, beta, gamma here, then what we see? We see that this CHR, this alkyl group is added to this carbon to show when this carbon is migrate to next terminal, it becomes the next terminal, then this R comes at the terminal position like this. Then this terminal position where you see that this is alpha, this is beta and this is gamma. That means the carbon atom which was gamma, it becomes alpha carbon in the product when it was migrated from oxygen to the carbon. Here you see that, you can see that. But actually this is alpha, beta, gamma, but here the name is alpha, beta and gamma. R is attached with the alpha carbon. Then here is, this is the alpha, this is the beta and this is the gamma. So in general, when both ortho positions are free, the product is ortho compound. When both ortho position is free, then the product is ortho compound. And when both ortho position are occupied, both the ortho position are occupied, then the product is para product. But during the ortho migration, the allyl group undergoes allylic shift, that is called allylic shift. So there is no catalyst is required for this reaction because this is thermal reaction, type of pericyclic reaction, so there is no need of catalyst. And it is called first order kinetics, in which one molecule is involved in the rearrangement. Only one molecule is involved in this rearrangement, so this is called first order kinetics. And the mixture of allyl ether, the mixture of, when we take the other example which is not shown here, when take the other example, the allyl ether is heated, so no converter products are formed, there is no crossover products are formed. So many exceptions are also there for this rearrangement, but we have to see only the favorable reaction, how to Claisen rearrangement takes place. So now see the mechanism of this reaction. When we see the mechanism of Claisen rearrangement, what happens there? The pi electrons, we can write the given formula in this form. So we can say that this molecule is, you know that already aryl ether. What happens? This pi bond of the benzene nucleus is moved to the gamma carbon for close up the ring. So for attachment, and this pi bond is migrated here to this carbon, and finally the oxygen carbon bond is broken out, and this bond is turned to this carbon and oxygen, between this carbon and oxygen, and so overall reaction is very slow. And there is a transition state is made of, and this transition state you can see here, the bond formation and bond breaking takes place simultaneously, so this is called a concerted transition state. Concerted transition state, because there is bond formation and bond breaking takes place simultaneously. And as soon as the transition state is formed,
Then the deprotonation of hydrogen takes place here. Deprotonation of hydrogen, because the mechanism is stabilized by two methods. Either this hydrogen is deprotonated or this oxygen donate its lone pair to this hydrogen and take up it, and so this bond is moved towards in the ring, and this bond finally goes out to deficient oxygen. So overall this rearrangement form ये आर्थो प्रोडक्ट, this is ortho allyl phenol, and simply here you see that this is a type of cyclohexadienone intermediate. This is cyclohexadienone intermediate. This is formed, and this is this gives the first reaction to move the ortho-allyl phenol. Now come to the second point, the para migration, when the rearrangement takes place at the para position. That means here you see that in this molecule both these two ortho position is occupied. That means here is alkyl group are attached. So we have shown here this carbon through dot. That means this is a labeled carbon which expresses C14 carbon, labeled C14 carbon. This is because the terminal carbon and this carbon is somewhat equivalent. So in overall reaction we see that we have to see that which carbon is broken from this oxygen. So we have to label through a dot. What happened? The reaction mechanism is taken as same as explained above, but the process is very slow. Here you see that even when the ortho position are substituted, the migration still occurs at all these position, and first of all to form the ortho substituted dione second. Here you see that there is first formation of ortho substituted dione second. However, the absence of hydrogen at the ortho position, here you see that the absence of hydrogen at the ortho position, there is no ortho hydrogen is found. There is the alkyl group, prevents enolization. This prevents the enolization, means there is no enol formation takes place. So what happened? Enolization means that is aromatization. Hence the allyl group undergoes a second migration. Then there is a second migration takes place. Here you see that this carbon, then this group is turned to para position. This bond goes to here, and this pi bond attack on this labeled carbon. This group undergoes second migration through a similar cyclization state, which are explained above, through a similar cyclization state to form dienone third. This is the intermediate dienone third. Here you see that intermediate dienone third, and now this intermediate undergoes very fast reaction through, here are hydrogen atoms, so there is movement of this bond towards inside, and this pi bond delocalizes further, and finally this bond goes to an oxygen which becomes negatively charged, and here hydrogen becomes positively charged. So there is interaction between them, and this form hydroxyl group. So overall molecules become a substituted allyl ether. So here you see that actually what happens,
कि जो हमारा एलाइल ग्रुप है वो पैरा पोजीशन पर आकर के शिफ्ट हो जाता है। इस रिएक्शन की सबसे बड़ी खासियत यही होती है। इसका मतलब ये हुआ, इस रिएक्शन में हमें ये देखने को मिला कि एलाइल ग्रुप अंडरगोज डबल इन्वर्जन, देयर इज डबल इन्वर्जन इन दिस रिएक्शन, इट इज़ नॉट रीअरेंज्ड इन द फाइनल प्रोडक्ट। ये फाइनल प्रोडक्ट में रीअरेंज नहीं होता है। दिस हैज़ बीन कन्फर्म्ड बाई आइसोटोपिकली लेबल्ड कार्बन। दिस इज लेबल कार्बन के थ्रू आइसोटोपिकली इसे जो है डिटरमाइंड कर दिया गया है। द रिएक्शन रेट इज ऑल्सो अनअफेक्टेड बाई द प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ सब्सटीट्यूएंट इन द एरोमेटिक रिंग, यानी एरोमेटिक रिंग में अगर कोई जो है एक तरह से कहा जाए कि जो हमारी एरोमेटिक रिंग है that is not affected either in the presence or absence of substituent, so the reaction is not ionic, so we can say that this reaction is not ionic. So overall rearrangement, this is very very important rearrangement of Claisen rearrangement, and actually this is equivalent to the sigmatropic rearrangement also. We consider that this is sigmatropic rearrangement. तो नेक्स्ट rearrangement which comes in group of sigmatropic rearrangement, that is called Cope rearrangement. This is the second name rearrangement. This is also very important. So now I will discuss about Cope rearrangement. This is type of Cope rearrangement. इस rearrangement में स्पेशली होता क्या है कि जो हमारा 1,5 डाइन होता है वो 1,5 डाइन में ही कन्वर्ट होता है। हियर यू सी दैट 1,5 डाइन इज कन्वर्टेड इनटू 1,5 डाइन। व्हाट डू यू मीन, सॉरी व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ कि 1,5 डाइन है, 1,5 डाइन ही बना रहा है, तो हो क्या रहा है इस रिएक्शन में? तो इस रिएक्शन में एक्चुअली हो क्या रहा है कि जहाँ पर सिग्मा बॉन्ड ब्रेकिंग है, तो यहाँ आप देख सकते हैं दिस इज ए टाइप ऑफ 3,3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट which is given by 1,5 diene, this 1,5 diene. So what happens in this reaction, here sigma bond is broken, so we can label this carbon is by numbering 1 and also this carbon given by numbering 1. You already know in sigmatropic rearrangement that the carbon which is take part during the reaction or in the reaction, that is given by the number 1 and number 1, and then both sided the number is started to form IJ, to form IJ interconversion, that is this is the IJ interconversion. So 1 2 3, there are three groups are involved in this, yani 3 carbons are in this case and 3 carbons are in this case. So this reaction is called 3,3 interaction, yeah, 3,3 sigmatropic reaction. So we further explained about the Cope reaction that the Cope rearrangement is an organic reaction where 1,5 diene under thermal condition. Here you see that the symbol of thermal condition. And what happened? The given molecule is converted to another 1,5 diene structural isomer. There is formation of structural isomer, and so we can say that this is a sigmatropic type of rearrangement. We can say that this is sigmatropic type of rearrangement. What happens in this rearrangement? It is a concerted process where the sigma bond breaking and formation takes place at the same time. Here you see that this is pi electrons are delocalized. First of all, this sigma are delocalized here and this further and this here. So there is bond breaking and there is bond formation. This takes place simultaneous. So this is concerted reaction. You already know, आपको पहले ही पता होगा कि concerted का मतलब होता है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें बॉन्ड का बनना और बॉन्ड का टूटना एक साथ होता है, ऐसे रिएक्शंस को हम कंसर्टेड रिएक्शन कहते हैं. तो कोप रीअरेंजमेंट भी एक टाइप का कंसर्टेड रिएक्शन है.
the further explanation of this rearrangement कि when substituent are present in the initial diene, what this mean, सपोज करिए अगर इस डाइन पर, इस ग्रुप पर कोई सब्सटीट्यूएंट प्रेजेंट हो जाए, यहाँ पे सब्सटीट्यूएंट प्रेजेंट हो जाए, तो यहाँ पे तभी कोई सब्सटीट्यूएंट नहीं, यहाँ पर एक सब्सटीट्यूएंट प्रेजेंट कर दिया जाए, तो फिर क्या होता है, फिर ये रिएक्शंस जनरली प्रोसीड नहीं होता है, इसे हम जनरली डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं कि फिर होता क्या है, द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ दिस रिएक्शन कैन बी प्रिडिक्टेड बाई, तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे ड्रॉ की एक्सप्लेन की जाती है, दैट इज प्रिडिक्टेड बाय ड्रॉइंग द मॉलिक्यूल इन द चेयर लाइक कन्फर्मेशन। हमें क्या करना होगा, उस मॉलिक्यूल को चेयर कन्फर्मेशन में कन्वर्ट करना होगा। जैसे ही हम उसे चेयर कन्फर्मेशन में कन्वर्ट करेंगे तो फिर हमें वहाँ देखना होगा पोजीशन ऑफ सब्सटीट्यूएंट, यानी वो सब्सटीट्यूएंट एक्सियल पोजीशन पर अटैच्ड है कि इक्वाटोरियल पोजीशन पर अटैच्ड है। तो अगर एक्सियल पोजीशन पर अटैच्ड है तो वह फेवरेबल रीअरेंजमेंट देगा, या फिर इक्वाटोरियल पर अटैच्ड है तो वो फेवरेबल रीअरेंजमेंट देगा, स्पेशली कोप रीअरेंजमेंट। तो सिंस आपको ये पता होगा कि कोप रीअरेंजमेंट, हियर यू सी दैट द सिंबल ऑफ इक्विलिब्रियम, दिस इज द इक्विलिब्रियम रीअरेंजमेंट। ये इक्विलिब्रियम रीअरेंजमेंट होता है कि जिस तरह से ये स्टार्टिंग मटेरियल इंटर कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, सेम उसी तरह से ये प्रोडक्ट भी हमारा इंटर कन्वर्ट होता है इसमें। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो चूंकि इसमें कोई सब्सटीट्यूएंट नहीं है तो कैसे पता लगाएं, तो इसीलिए यहाँ पर सब्सटीट्यूएंट ऐड कर दिया जाता है और फिर उसका पोजीशन देखा जाता है किसमें, मॉलिक्यूल के चेयर कन्फर्मेशन में। सो द कोप रीअरेंजमेंट इज इक्विलिब्रियम रिएक्शन एंड इक्विलिब्रियम रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाई ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आपने पढ़ा होगा इसे बीएससी थर्ड ईयर में, ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओवरऑल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इस ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट का मतलब होता है कि इस रिएक्शन में जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है और जो हमारा प्रोडक्ट है, इन दोनों का ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट निकाला जाता है और उसके थ्रू डिटरमाइंड किया जाता है कि रिएक्शन हमारा फेवरेबल होगा या फिर रिएक्शन फेवरेबल नहीं होगा। तो आइए हम एक एग्जांपल एक मैकेनिज़्म देखते हैं, इनिशियल मैकेनिज़्म फॉर कोप रीअरेंजमेंट। तो ये बहुत ही सिंपल मैकेनिज़्म है यहाँ पर कि यहाँ पर कार्बन 1, क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है इसलिए हम इसे 1 1 कर देंगे, हो गया 2, हो गया 3, हो गया 2, हो गया 3। तो यहाँ क्या देख सकते हैं कि यहाँ पर देख रहे हैं सिग्मा बॉन्ड यहाँ मूव कर रहा है और पाई बॉन्ड यहाँ मूव कर रहा है। तो पाई बॉन्ड जब मूव कर रहा है तो किस में कन्वर्ट हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड में। किसके बीच बन रहा है, 3 और 3, इसका 3 इसके 3 के बीच यहाँ ज्वाइनिंग हो जा रही है। आप यहाँ देख सकते हैं इसका 3 है, 1 2 3, 1 2 3। अब आप देख सकते हैं यहाँ क्लियर जो है, इस फिगर में आपको क्लियर दिख सकता है कि यहाँ पर देखिए 1 2 3, 1 2 3 यहाँ है, 1 2 3। तो जो सिग्मा बॉन्ड बना हमारा किसके बीच में बना, 3 और 3 के बीच में बना। तो इसलिए ये रिएक्शन क्या होता है, 3-3 रीअरेंजमेंट, इसको 3-3 रीअरेंजमेंट कहते हैं। तो चूंकि इसमें एक कंसर्टेड ट्रांजिशन स्टेट भी आता है जिसको कंसर्टेड साइक्लिक स्टेट ट्रांजिशन स्टेट, यही है CTS आपका, कंसर्टेड साइक्लिक स्टेट ट्रांजिशन स्टेट। अब यहाँ पर देखिए होता क्या है कि जैसा हमने बताया कि जब पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड मूव करता है तो इस 1 2 के बीच में, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 2 के बीच में एक नए पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ओवरऑल ये पोजीशंस इसका बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग को दर्शाया गया है। ओवरऑल इसको जैसे जैसे पाई बॉन्ड हमारा मूव कर रहा है वैसे वैसे यहाँ पोजीशन इसको दर्शाया गया है। अब यहाँ इसको एक तरह से हम कहें कि ब्रेकिंग है तो यहाँ फॉर्मेशन है, यहाँ ब्रेकिंग है तो यहाँ फॉर्मेशन है, यहाँ ब्रेकिंग है तो यहाँ फॉर्मेशन है। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये रिएक्शन थोड़ा सा फास्ट होता है लेकिन इमीडिएटली देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट।
this product, this is 1,5-diene, this is also 1,5-diene, दोनों ही 1,5-डाइन है, यहाँ पे एक CTS का फॉर्मेशन हो रहा है. तो दिस इज द मेन कंक्लूजन ऑफ Copley arrangement. Now we see that when the starting material is attached with the substituent, हमने जैसा कि एक्सप्लेन किया आपको और बताया उसके बारे में कि अगर हमारा स्टार्टिंग मटेरियल सब्स्टिट्यूएंट से अटैच्ड हो जाता है तो फिर वहाँ क्या होता है. तो ऐसी स्थिति में इसको डिटरमाइन करने के लिए हमें क्या देखना होता है, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट देखना होता है. इसका मतलब ये हुआ कि जो सब्स्टिट्यूएंट है उसे हमें दोनों पोजीशन पर स्थिर रख करके ये देखना होगा, एक्सियल पोजीशन पर भी और इक्वेटोरियल पोजीशन पर भी. तो इस पोजीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या करना होगा कि इस स्टार्टिंग मटेरियल का हमें एक कन्फर्मेशन लेना पड़ेगा. तो यहाँ देखिए इसका हमने दो कन्फर्मेशन बनाया है. एक कन्फर्मेशन हमने यहाँ ये बनाया है और एक कन्फर्मेशन हमने ये बनाया है. दिस इज़ द चेयर कन्फर्मेशन समवॉट. सिंस रिंग इज ओपन, सो हियर इज यू कंसीडर द रिंग इज ओपन. ओके, हियर इज रिंग इज ओपन. सो R group is attached in this case equatorial and in this case axial. यहाँ पर axially attached है. तो होगा क्या कि द रिएक्शन इज नॉट फेवर्ड. यहाँ हमने देखिए दिस इज द एक कट का निशान लगाया है. इसका मतलब होता है दिस कन्फर्मेशन इज नॉट फेवर्ड बाय this starting material. This conformation is not favored. Why? Because R is axial. R कहाँ पर लगा हुआ, एक्सियल पर लगा हुआ. तो जब एक्सियल पर लगा हुआ है तो ये कन्फर्मेशन फेवरेबल नहीं होगा. तो जब ये फेवरेबल नहीं होगा तो देयर इज नो फर्दर रिएक्शन. तो इसका आगे फर्दर रिएक्शन भी नहीं होगा. तो इसका मतलब हुआ कि ये स्टार्टिंग मटेरियल में हम R को कहाँ लिख करके देखना पड़ेगा, इस पोजीशन पर. इस तरह से हम स्ट्रक्चर बनाए और यहाँ इक्वेटोरियली इसको अरेंज करें. तो अब आप फर्दर यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर होता क्या है. ये बॉन्ड, दिस बॉन्ड इज ब्रोकन डाउन. ये बॉन्ड आपका यहाँ टूटता है. यहाँ आप देखिए ये बॉन्ड टूट चुका है. ये बॉन्ड यहाँ टूटता है, यहाँ पर आता है डबल बॉन्ड होता है. और ये बॉन्ड कहाँ मूव करता है, यहाँ पे मूव करता है. आप देख सकते हैं, यानी इसके बीच में फॉर्मेशन करता है. और ये कहाँ मूव करता है, यहाँ. ये देखिए लाइक दिस. और स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरह से हो जाता है. यहाँ बॉन्ड ब्रेक किया, यहाँ फॉर्म हुआ, यहाँ बॉन्ड हुआ, और यहाँ मूव कर गया. ठीक है, यहाँ मूव किया. और आर की पोजीशन सेम एक्सियल बनी हुई है. हियर यू सी दैट. एंड दिस स्ट्रक्चर इज इक्विलिब्रियम टू दिस. इसको अगर हम पूरा ओपन लिखें, ओपन फॉर्म में, तो हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा. और एक तरह से हम ई आइसोमर फॉर्मेशन होता है यहाँ पे. दूसरे केसेस में आइए यहाँ पर हम देखें कि सब्स्टिट्यूएंट को यहाँ पर देखिए, अगर एक तरह से देखा जाए तो ये एबव द प्लेन है और ये बिलो द प्लेन है. ओके, एबव द प्लेन है और बिलो द प्लेन है. अब होगा क्या, अगर इसके स्ट्रक्चर को हम ऐसे रखते हैं, ये यहाँ पर है तो इसका मतलब नीचे होगा. यही होगा ना, यहाँ नीचे होगा. तो ये एक्सियल प्लेन जो है बॉन्ड हो गया. तो फिर आर कहाँ पर आ गया, फिर आर जो है हमारा इस एक्सियल पोजीशन पर आ गया. और जैसे ही आर एक्सियल पोजीशन पर जाएगा तो ये स्ट्रक्चर फेवरेबल नहीं होगा. ये स्ट्रक्चर स्पेशली फेवरेबल नहीं होगा. तो जब ये फेवरेबल नहीं होगा तो इसका मतलब है कि दिस इज नॉट ड्रॉन इन दिस चेयर कन्फर्मेशन. यानी यहाँ हमने देखिए कट का निशान लगाया है. इसका मतलब एक्स नहीं है. इसका मतलब दिस इज नॉट कन्वर्टेड इनटू दिस टाइप ऑफ चेयर कन्फर्मेशन. वी हैव, जिसे हम इस चेयर कन्फर्मेशन में कन्वर्ट नहीं कर सकते या बना नहीं सकते, इस तरह से कहा जाए. बिकॉज यहाँ पे आर जो है वो एक्सियल पोजीशन पे लगा हुआ है. तो फर्दर फिर क्या करना होगा, हमें सेम वे में जैसे इसमें हमने लिया था,
इसका ये कन्फर्मेशन बनाना होगा इस तरह से, हमने देखा इस तरह से कन्फर्मेशन हमें बनाना होगा ऐसे। और यहाँ पर देखिए आर कहाँ आ गया, यहाँ आर ग्रुप जो है इक्वाटोरियल पोजीशन पे लगा हुआ है। तो जब आर इक्वाटोरियल पोजीशन पे लगा हुआ है तब रिएक्शन क्या होगा, फेवरेबल हो जाएगा, तुरंत ही फेवरेबल हो जाएगा। और जैसे ही फेवरेबल होगा फिर क्या होगा, बॉन्ड की ब्रेकिंग देखिए। अब यहाँ पर ये बॉन्ड जो है, ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ ब्रेक होता है इससे। अगर हम यहाँ 1-1 मान लें इसको, यहाँ आप 1-1 मान सकते हैं। और सेम चीज़ यहाँ था, ये बॉन्ड टूट रहा था तो यहाँ 1-1 मान सकते हैं, 1-1 2-3 ये हो गया, 2-3 ये हो गया। सेम उसी तरह से जब ये 1-1 है 2-3 2-3, सेम उसी तरह से नंबरिंग वही होगी जैसे यहाँ 1-1 है, तो सेम उसी तरह से होगा। जहाँ भी ये सिग्मा बॉन्ड जो है ब्रेक होता है उसी पोजीशन को हम 1-1 पोजीशन आइडेंटिफाई कर देते हैं। तो यहाँ बॉन्ड यहाँ मूव किया, तो जैसे ही बॉन्ड यहाँ मूव किया तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ आया, ये पाई बॉन्ड यहाँ मूव किया और ये पाई बॉन्ड यहाँ मूव किया, और इस तरह से एक नया स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो गया समवॉट लाइक दिस। और यहाँ आप देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर को हम इस तरह से इक्विलिब्रियम में कन्वर्ट कर सकते हैं इसके। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बोथ दी आइसोमर आर नियर अबाउट व्हाट, इक्वल। ये दोनों क्या है, ये दोनों इक्वल है। यानी अगर हम इनिशियल रिएक्टेंट को हम चेयर कन्फर्मेशन से में कन्वर्ट करके और हम प्रोडक्ट बनाएं, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वही सेम प्रोडक्ट कहाँ से बनना चाहिए, अगर प्रोडक्ट वाले मॉलिक्यूल्स को सेम चेयर कन्फर्मेशन में कन्वर्ट करके हम इस इनिशियली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह से देखा जाता है कि इन दिस एग्जाम्पल बोथ द रिएक्टेंट्स गिव सेम प्रोडक्ट्स। दोनों क्या करता है, ये भी रिएक्टेंट्स हो गया, ये भी रिएक्टेंट। जब इसको आप लेंगे, जब इसे लिया जाएगा तो रिएक्टेंट ही होगा ना, इसे लेंगे तो ये भी रिएक्टेंट होगा। तो दोनों क्या करता है, सेम प्रोडक्ट देता है। तो इस तरह से डिटरमाइन किया जाता है कोप रीअरेंजमेंट का सब्स्टिट्यूटेड टाइप ऑफ रिएक्शन। तो आइए हम फर्दर चलते हैं। तो ये था हमारा सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन, क्लेजन रीअरेंजमेंट और कोप रीअरेंजमेंट। तो आइए हम नेक्स्ट पेरीसाइक्लिक रिएक्शन को एक्सप्लेन करते हैं, और ये पेरीसाइक्लिक रिएक्शन है ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन। अगला रिएक्शन है हमारा ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन। दिस इज द फोर्थ एंड लास्ट टाइप ऑफ पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। व्हाट हैपेंस इन दिस रिएक्शन? A group transfer reaction is a pericyclic process where one or more group of atom is transferred from one molecule to another. इसमें होता क्या है कि एक पूरा का पूरा ग्रुप वो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में होता क्या है, ट्रांसफ़र हो जाता है इसमें। तो इस ग्रुप ट्रांसफ़र रिएक्शंस का जो सबसे इसका जो बेसिक कैरेक्टर है इसे हम पेरीसाइक्लिक रिएक्शन में एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो इसलिए हम इसके टाइप्स पर चलते हैं सीधा। तो इसका जो सबसे बेस्ट ग्रुप ट्रांसफ़र रिएक्शंस माना गया है वो है एल्डर इन रिएक्शन, स्पेशली एल्डर इन रिएक्शन। वो है आपका एल्डर इन रिएक्शन। इसे एल्डर इन रिएक्शन क्यों कहा जाता है, या सिंपली हम इन रिएक्शन भी कह सकते हैं या फिर इसे एल्डर इन रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो इसे एल्डर इन रिएक्शन क्यों कहा जाता है? बिकॉज दिस इन रिएक्शन इज डिस्कवर्ड बाय कर्ट एल्डर इन 1943। ये कर्ट एल्डर के थ्रू 1943 में जो है इसको डिस्कवर किया गया था, इसलिए उनके नेम के साथ इसे जोड़ दिया गया और इसे एल्डर इन रिएक्शन कहा जाता है। तो ये ग्रुप ट्रांसफ़र का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। तो इसमें होता क्या है, द बेस्ट ग्रुप ट्रांसफ़र रिएक्शन इज द इन रिएक्शन वेयर इन विच एन एलाइलिक हाइड्रोजन, दिस इज एलाइलिक हाइड्रोजन, दिस इज ट्रांसफर टू एन एल्कीन। ये एल्कीन पर ट्रांसफ़र हो जाता है। ये हमारा एलाइल ग्रुप है
आपको पता होगा कि एलाइल ग्रुप बनता कैसे है, जब प्रोपीन से एक हाइड्रोजन, प्रोपीन स्पेशली प्रोपीन से एक हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है तो एलाइल ग्रुप बनता है, एलाइलिक ग्रुप। और जब एथिलीन से एक हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है तो विनाइल ग्रुप बनता है, एंड सो ऑन। उसी तरह से जब ब्यूटीन से एक हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है तो प्रोटोनिल ग्रुप बनता है। तो इस तरह से बहुत सारे रिएक्टिव ग्रुप्स जो है हमारे फॉर्म होते रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए इनोफाइल, दिस इन इज आल्सो कॉल्ड इनोफाइल। दिस इनोफाइल में भी anyone, this may be either carbonyl compound, this may be are such type of molecule which containing multiple bond। क्या क्या हो सकता है, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड N, ओके, डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड N C, डबल बॉन्ड C एंड सो ऑन लाइक दिस। तो इस रिएक्शन में एक्चुअली होता क्या है कि पिछले आप रिएक्शंस में देखा कि होमो और लूमो के बीच में इंटरेक्शन होता है। तो एक्चुअली जो रिएक्शन का मोटो है वो ये है कि यहाँ आप देख सकते हैं एलाइलिक का, व्हाट इज़ दिस, इस एलाइलिक का होमो और इस इन के लोमो के बीच में यहाँ देखिए इंटरेक्शन हो रहा है। अब आप इस इंटरेक्शन को क्या कह सकते हैं, सुप्राफेशियल कह सकते हैं। दिस इज सुप्राफेशियल टाइप ऑफ इंटरेक्शन। तो हमें इस पर डिटेल, इसके बारे में तो हमने आपको पीछे बता चुका है कि सुप्राफेशियल इंटरफेशियल होता क्या है, कैसे जो है लूमो और होमो का फॉर्मेशन होता है, कैसे इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है। तो आइए हम इसके मैकेनिज्म को देखते हैं। तो यहाँ पर मैकेनिज्म को हमने डबल बॉन्ड को XY से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसका होमो बनाया गया है, ये है एलाइलिक ग्रुप, ये है आपका इनोफाइल जिसे हम एल्कीन कहते हैं। तो यहाँ से देखिए ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफ़र, यानी ये यहाँ हाइड्रोजन को लेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ होगा। तो एक साइड में देखिए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जा रहा है और ये ग्रुप जो है टोटली कहाँ जा रहा है, इस Y के ऊपर, और इस तरह से ट्रांसफ़र हो जा रहा है ग्रुप का किस किस ऊपर, एल्कीन के ऊपर। तो बीच में एक यहाँ ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। तो दिस इज़ होमो एंड दिस इज़ लूमो ट्रांजिशन स्टेट। स्पेशली क्या होना चाहिए, लूमो जो है इसके साथ इसका लूमो, तो जब एक दूसरे होमो और लूमो को एक साथ ओपन करके और हम बॉन्ड के थ्रू जब उन्हें दिखाते हैं तो वो हमारा एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट होता है। तो देयर आर सम अदर इन टाइप ऑफ रिएक्शन दैट इज़ कॉल्ड मेटेलो इन रिएक्शन। अब इसी तरह के कुछ और सारे इन रिएक्शंस हैं, तो जिसमें हम आपको एक रिएक्शंस बताएंगे मेटेलो इन रिएक्शन। मेटेलो इन रिएक्शन का मतलब होता है मेटल कार्बन बॉन्ड, जहाँ कार्बन से मेटल जुड़ा हुआ हो। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, लेकिन ये इसका मैकेनिज़्म अभी उतना सेम इसी तरह से इसका मैकेनिज़्म होता है। तो हमें सिर्फ ये देखना होता है कि जो इन ग्रुप होता है यहाँ Cl होगा। तो होता क्या है कि आप देखिए एलाइलिक मेटल रिएजेंट, कौन कौन से मेटल हो सकते हैं आपके, मेटल लाइक्स मैग्नीशियम हो सकता है, जिंक हो सकता है, लिथियम हो सकता है, निकिल हो सकता है, पैलेडियम हो सकता है, प्लेटिनम हो सकता है, ये कोई भी मेटल हो सकता है, सेलेनियम हो सकता है, दिस में बी एनीथिंग। सो टेक पार्ट रेडिली बाई माइग्रेशन ऑफ द मेटल एटम। इसमें क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन का माइग्रेशन होता है तो वहाँ हाइड्रोजन की जगह मेटल का माइग्रेशन होता है इंस्टीड ऑफ हाइड्रोजन। तो इस रिएक्शन में आपने देखा कि हाइड्रोजन की जगह किसका माइग्रेशन हो रहा है, मेटल का माइग्रेशन हो रहा है। एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू कार्बन मेटल बॉन्ड। इन रिएक्शन में क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और इसमें क्या होता है, मेटल कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो चलिए इसका एक सिंपल सा रिएक्शन देखते हैं। ये हमारा इन है, आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या होता है, ये ग्रुप देखिए यहाँ पर ये मैग्नीशियम को यहाँ पर अपने से जोड़ता है और ये बॉन्ड देखिए यहाँ जाता है और ये बॉन्ड देखिए यहाँ आता है। सेम रिएक्शन है जैसे आपने अभी ऊपर देखा। और इसे 90 डिग्री पर ये एक डेरिवेटिव है जिसमें ट्राईमिथाइल सेलेनियम दिया गया है, ये सीलिल कंपाउंड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम क्लोराइड ये पूरा का पूरा कहाँ चला आ रहा है, इस सेलेनियम वाले ग्रुप से यहाँ पर कार्बन से आके जुड़ जाता है, सेलेनियम कार्बन से यहाँ आके जुड़ जाता है। ओके, और स्पेशली रिएक्शन तो हमारा यहीं तक है जिसे हम ग्रुप ट्रांसफ़र रिएक्शन कहते हैं। यही है आपका ग्रुप ट्रांसफ़र रिएक्शन, GTR, स्पेशल यही ग्रुप ट्रांसफ़र कहा जाता है।
लेकिन ये फर्दर चूँकि थोड़ा सा अनस्टेबल होता है, जिसकी हम हाइड्रोलिसिस के थ्रू एक मोर स्टेबल प्रोडक्ट में यहाँ जो है कन्वर्ट करा सकते हैं। तो यहाँ कराया क्या जाता है कि फर्दर जब यहाँ H2O जोड़ दिया जाता है तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड, देखिए यहाँ से ये टोटली यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है और इस तरह से एक सब्सटीट्यूटेड एक डेरिवेटिव का फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पे। तो दिस इज़ आल्सो ए टाइप ऑफ ग्रुप ट्रांसफ़र रिएक्शन। तो हमें इनिशियली यही देखना है कि ये जो मैं यहाँ पे कार्बन और मेटल बॉन्ड, कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है। तो दिस इज आल्सो ए ग्रुप ट्रांसफ़र रिएक्शन। सो इस पूरे वीडियोज़ में आपने देखा कि कैसे ग्रुप ट्रांसफ़र रिएक्शन डिफरेंट टाइप का होता है। इसके तो स्पेशली 3 टाइप्स होते हैं। इन रिएक्शंस भी होता है, चिलीट्रोपिक रिएक्शंस भी होता है, डायट्रोपिक रिएक्शंस भी होता है। तो इस स्पेशली जो ज़्यादा पूछे जाते हैं वो इन रिएक्शन ही होता है। That's all. Thank you.